they gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. A new and developed society emerged that had many powerful states. Gradually मतलब कि धीरे धीरे रिप्लेस किए जो पुराने रूलर्स थे उनको, जैसे कि एग्रीकल्चरल एरियाज के न्यू जो हैं वो डेवलप्ड हुए सोसाइटी में, और बहुत सारे पावरफुल स्टेट्स भी आए. ओके, डिड यू नो अ 12th century inscription from Uyakondon Udayar in Tiruchirappalli Taluka in the present day Tamil Nadu describes the deliberations in a sabha of Brahmins as follows. अच्छा, 12th century में कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, ओके, तमिलनाडु की, तो वो कुछ बताया गया है उनके बारे में यहाँ पे. They deliberate on the status of a group known as the Rathakaras, literally chariot makers. Okay, they laid down their occupations, which were to include architecture, building coaches with image in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king. ओके, देखिए, तो उस टाइम पे रथकारा मतलब कि चैरियट मेकर्स जो होते थे वो, ओके, उनकी जो ऑक्यूपेशंस होती थी वो इंक्लूड करती थी आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती थी? वुडन इक्विपमेंट बनाना, ज्वेलरीज बनाना, मंडप बिल्ड करना, ओके, ये सारी चीज़ें. नाउ the rise of Rajput clans to the position of rulers set as an example for the tribal to follow. Gradually, with the support of the Brahmins, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the lower jatis or caste society. Okay, देखिए, जो राइज हुआ, बढ़ता हुआ एक राजपूत क्लैन का बढ़ता हुआ राइज हो रहा था, उसमें क्या था, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया ट्राइबल्स को फॉलो करने के लिए. ओके, धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट किया ब्राह्मण्स को. काफ़ी सारे जो ट्राइब्स थे वो उस कास्ट सिस्टम का पार्ट बनते जा रहे थे. ओके, जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी उन्होंने रूलिंग क्लास को ज्वाइन करना शुरू कर दिया. एक बहुत ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी बनती जा रही थी लोअर जाटीज़ की, ओके, कास्ट सोसाइटी की. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northeast frontier and the adopted Islam quite early. They continued to reject the caste system. The unequal society order prescribed the orthodox Hinduism but was not widely accepted in these areas. Okay, देखिए, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे थे जो पंजाब के थे, उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को अपनाने से मना कर दिया. ओके, तो उनको अनइक्वल फील होता था सोसाइटी में, इस वजह से उन्होंने ये जो ऑर्थोडॉक्स था हिंदुइज्म का, इस चीज़ को अपनाने से मना कर लिया. ओके, तो काफ़ी सारे वाइडली ये चीज़ें काफ़ी सारे एरियाज में भी हो रही थी. ओके, लेट्स डू इट. Tuka is a new student who has been enrolled in Raghav's class. He has come from a tribal society, and though he has lived in the settled community all his life, he feels a little shy of mixing with the other students. What should Raghav and students do to make Tuka feel comfortable being among them? ये आप खुद से करेंगे. Tribes in the medieval period. The tribal people were engaged in the occupations like agriculture, herding and hunting gathering. ओके, देखिए, जो ट्राइबल पीपल थे वो किस चीज़ में उनके ऑक्यूपेशंस क्या थी, वो हंटिंग गैदरिंग या फिर एग्रीकल्चर में ही खुद को बिजी रखते थे. ओके, दे वर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सराउंडिंग्स. Some tribes led a nomadic lifestyle and moved here and there, while a few settled in the area. Those tribes who were moving from place to another place took up other professions too. Okay, देखिए, कुछ जो ट्राइब्स थे वो जो थे वो अवेलेबल, जैसे कि उनकी जो सराउंडिंग्स में जो जो चीज़ें अवेलेबल होती थी वो उन सारी चीज़ों से गुजारा करते थे. लेकिन कुछ जो थे वो नोमैडिक लाइफस्टाइल जी रहे थे, मतलब कि वेंडर करते थे एक जगह से दूसरी जगह. ओके, वो ट्राइब्स मूव करते थे. नाउ सम ट्राइबल कम्युनिटीज वर स्मॉल इन साइज वाइल सम वर वेरी लार्ज एंड पावरफुल, सच एज बालूची ट्राइब इन नॉर्थ वेस्ट, खोखाराज इन पंजाब, गोरखाज इन चौबीसी रिया presently western Nepal, Afghans in the northwest, Langans and Arguns in Multan, Nagas and Kashis in northeast. Afghans control important trade routes via Kandhan and Multan. The Mundas and the Santhals were important tribal groups in eastern India. Kolis lived in the Deccan, Karnataka and part of Gujarat. Koragas, Vetars, Marawars were major tribes of the south. Okay, देखिए,
कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो थी वो छोटी थी, कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट पे बड़ी थी, लार्ज थी। ओके, उनमें से कुछ का नाम यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि खोखार्स पंजाब की थी, गोरक्स चौबीसी जिसको अभी प्रेजेंटली में नेपाल में है, वेस्टर्न नेपाल बोला जाता है, अफगान्स नॉर्थ वेस्ट में, लंघास जो है और अरगुन्स मुल्तान में, नेगास काशिस नॉर्थ ईस्ट में। अफगान्स ने जो क्या किया था, कंट्रोल किया हुआ था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जो है उसको कंट्रोल किया गया था, कंधार से मुल्तान तक जो जाता था। मुंडास जो थे और जो संतल्स थे, उन्होंने ट्राइबल ग्रुप के जो ईस्टर्न इंडिया है उसको कंट्रोल किया गया था, उनके लिए इंपॉर्टेंट था वो एरिया। कोलीस जो है वो डेक्कन्स में रहते थे, कर्नाटका और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी। ओके, और कोराक्स, वेतार्स और मारावाड़स ये मेजर ट्राइब्स थे साउथ के। ओके, नाउ डिड यू नो the Beni Maneshe tribe consisting of the Mizo, Kuki and Chin people found in Manipur and Mizoram and descendants of the lost of tribes of Israel. Okay, देखिए जो बेनी मानेशी ट्राइब हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, मीज़ो, कुकी, चिन पीपल जो हैं जो कि मणिपुर और मिजोरम में पाए जाते हैं, वो लोस्ट ट्राइब है। कहाँ से लोस्ट है, कहाँ के हैं, इजराइल के। ओके, मैनी कम्युनिटीज हु वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट वर ग्रेजुअली फेस्ड टू गिव अप देयर old livelihood and become farmers. The enlarged population of settled communities required various services more regularly, which gave rise to convert tribal into artisans and peddlers. Okay, see, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी थी जो डिपेंड करती थी फॉरेस्ट पे, और धीरे धीरे वो फोर्स किया गया उनको लाइवलीहुड, पुराने वाला लाइवलीहुड जो है वो अपनाने के लिए, और धीरे धीरे वो क्या बन गए, फार्मर्स बन गए। ओके, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और वो जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी वो ज़्यादा आगे होती जा रही थी। आर्टिशंस, पेडलर्स, ये सारे लोग बढ़ते जा रहे थे, जो ट्राइबल्स थे वो सब बनते जा रहे थे। ओके, thus gradually more number of tribal communities become part of the settled communities. इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो सेटल्ड कम्युनिटीज का पार्ट बनती जा रही थी। They had special knowledge of various skills and trades. Skills और trades की उनको knowledge होती थी। Nomadic tribes moves from place to place with their animals. When the supply of food for their animals got exhausted in an area, they moved to some other place. They exchanged milk, honey, wool, ghee, etc. with the settled agriculturalists for grain and various other items. Banjaras were one type of nomadic traders who traveled with their families in big groups. They transformed grains and villages to towns through their carts, horses and cattle. Their caravan was called the tenda. They supplied food grains to the Mughal army too. Okay, देखिए यहाँ पे जो उन्होंने क्या किया, नोमैडिक ट्राइब्स जो थे वो एक प्लेस से दूसरी तरफ मूव करते थे, ठीक है, अपने एनिमल्स के साथ, और उसके साथ साथ वो अपना फूड भी लेकर चलते थे, सप्लाई करते थे, ठीक है। जब वो एग्जॉस्ट हो जाते थे तो एक एरिया पे रुक भी जाते थे। ओके, और इसके साथ साथ वो अपने मिल्क, हनी, वूल, घी ये सारी चीज़ें एक्सचेंज करते हुए चलते थे। ओके, जो भी सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे उनसे ग्रेन्स लेते थे और भी काफ़ी सारे आइटम्स वो चेंज कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे, बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम था। ओके, नाउ बंजारास कुछ थे, उनमें से जो बंजारास थे वो भी इस तरीके के नोमैडिक ट्रेडर्स होते थे। ओके, जो ट्रेवल करते थे अपने फैमिलीज के साथ बड़े बड़े ग्रुप्स में। ओके, वो ट्रांसपोर्ट करते थे ग्रेन्स को, कहाँ से, विलेजेस से टाउन्स तक, अपने कार्ट्स में, हाउसेस पे और कैटल्स पे। ओके, नाउ वो फूड ग्रेन्स को सप्लाई किया करते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। There were powerful tribes who established independent kingdoms. We will discuss such two tribes, the Gonds and the Ahoms. Okay, देखिए पावरफुल ट्राइब्स की बात हो रही है जिन्होंने खुद का किंगडम बनाया था। उनका कौन कौन से पावरफुल ट्राइब्स थे, वो थे गोंड्स और अहोम्स। ओके, केस स्टडी द गोंड्स। द गोंड्स वर द बेस्ट नोन ट्राइबल कम्युनिटी रिसाइडिंग द सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। द रीजन वाज टर्म्ड एज गोंडवाना और द कंट्री इनहैबिटेड बाय गोंड्स। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ओके, देखिए जो गोंड्स थे वो बेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी थे। ओके, और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ओके, इनका जो रीजन था इनको बोला जाता था गोंडवाना। ओके, और हमारी जो कंट्री है इससे इनहैबिटेड है। ओके, नाउ
ये जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, मैनी न्यू स्मॉल क्लैंस वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ लार्ज गोंड ट्राइब. ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय. A few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs at the time of declining of Delhi Sultanate. ओके देखिए, बहुत सारे स्मॉल क्लैंस ऐसे थे जो कि गोंड ट्राइब में ही थे, लेकिन उनके खुद के राजा रानी होते थे. ओके, ऐसे जो गोंड किंगडम्स होते थे वो बिगनिंग में डोमिनेट करते थे. ओके, स्मॉल गोंड चीफ हुआ करते थे. उनमें डिक्लाइन जब से दिल्ली सल्तनत जैसे जैसे डिक्लाइन होती गई तब से ये बनते गए. ओके, द बिगेस्ट गोंड किंगडम गढ़ Katinga was divided into gards, whereas each gard was controlled by the particular Gond clan. This was further divided into units of 84 villages called Chaurasi, while 12 villages made one Bharhot. Okay, देखिए, जो बिगेस्ट गोंड किंगडम था जिसको घर कटिंगा बोला गया था, ये गर्ड्स में डिवाइड किया गया. ओके, और जो गर्ड था वो कंट्रोल किया जाता था किसी भी एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन के थ्रू. ओके, और इसको डिवाइड करके 84 बोला गया जिसको 84 माना गया. ओके, 84 नाम से माना गया, और 12 विलेजेस इसमें बनाए गए जिसको भरहोत बोला जाता था. ओके, नाउ the emergence of large states changed the nature of the Gond society, and they were divided gradually into unequal social classes. Powerful rulers like Amandas gave away land to Brahmins who declared the Amandas, and his forefathers were Rajputs. Okay, देखिए, जो एमरजेंस थे लार्ज स्टेट्स के जितने भी एमरजेंसेस थे उन्होंने इसको चेंज किया, गोंड सोसाइटी को चेंज किया और डिवाइड किया ग्रेजुअली धीरे धीरे सोशल क्लासेस में, अनइक्वल सोशल क्लासेस में. जितने पावरफुल रूलर्स थे जैसे कि अमनदास, उन्होंने क्या किया, इसको दे दिया किसको, इनकी लैंड्स को किसको दे दिया, ब्राह्मण्स को दे दिया, जिन्होंने इनको क्या डिक्लेयर किया, अमनदास. और उनके फोर फादर्स कौन थे, और राजपूत जो होते थे वो उनके फोर फादर्स थे. सन ऑफ अमनदास वाज दलपत हु गॉट मैरिड टू दुर्गावती चंडेला, राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम महोबा. Thus, the Chandel and the Rajgond dynasties were allied. After the death of the husband in 1550 CE, Durgavati herself took the reign of the Gond kingdom. Okay, देखिए, जो अमनदास का बेटा था दलपत, उन्होंने शादी कर ली दुर्गावती, चंडेला की महारानी जो थी, प्रिंसेस जो थी. ओके, उन्होंने शादी कर ली. उसके बाद चंडेल और राजगोंड डायनेस्टीज जो थी वो अलाइड हो गई, दोनों की जो डायनेस्टी थी वो अलाइड हो गई, मिल गई आपस में. ठीक है, और उनकी डेथ के बाद 1550 CE, उनकी डेथ के बाद जो उनकी बीवी थी उन्होंने ही इनकी जो सत्ता थी इसको आगे बढ़ाया, खुद चलाया. ओके, नाउ Durgavati son was 5 years only at the start of the Rani Durgavati rule. In 1565, the Mughal forces attacked Garkatinga. She fought bravely but defeated. She preferred to die rather than to surrender. देखिए, दुर्गावती का जो बेटा था वो सिर्फ 5 साल का था जब उन्होंने रूल करना शुरू किया. ओके, 1565 में मुगल फोर्सेस जो थी उन्होंने अटैक किया था उन पे, उन्होंने काफ़ी ब्रेवली लड़ाई की थी, उन्होंने सरेंडर करने से बेहतर मर जाना सही समझा था. ओके, डिड यू नो the Gond kingdom was divided into gards. Each gard was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into units of 84 villages called Chaurasi. The Chaurasi was subdivided into Bharots which were made up of 12 villages each. जैसे कि अभी हमने पढ़ा, इसमें वही चीज़ बताई गई है, जो Gond kingdoms थे उनको डिवाइड किया गया था गर्ड्स में. ओके, जो गर्ड्स थे, हर गर्ड जो है एक पर्टिकुलर Gond क्लैन के थ्रू चलाया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, जिसको 84 विलेजेस मतलब कि 84 बोला जाता था, और उन 84 को 12 विलेजेस में बांटा गया था. ओके, there were more than 70,000 villages in Garkatinga as per Akbarnama. Garkatinga was a rich state and it earned much wealth by selling wild animals to other states. Mughals got a huge booty of precious coins and elephants after defeating Durgavati. Despite the defeat, Garkatinga survived for some time and later on was defeated by Bundelas and Marathas. Okay, देखिए, 70,000 विलेजेस थे गरकटिंगा में,
अकबरनामा के थ्रू, अगर देखा जाए अकबरनामा में लिखा गया जिस हिसाब से, उस हिसाब से 70,000 विलेजेस थे। ओके, गढ़कटिंगा एक बहुत ही ज़्यादा रिच स्टेट था और वेल्थ थी काफ़ी ज़्यादा उसमें। मुगल्स की ने बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे लगाई थी, उसमें ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स थे मुगल्स के, एलिफेंट्स, और ये सब जब डिफीट कर दिया गया दुर्गावती को तब ये सारी चीज़ें उन्होंने हड़प ली। ओके, और डिफीट करने के बाद गढ़कटिंगा ने सर्वाइव किया कुछ टाइम तक, और उसके बाद वो जो बुंदेलास थे और मराठास थे उन्होंने उनको डिफीट कर दिया। ओके, नाउ अहोम्स. The Ahoms were a powerful tribe who had migrated from the present-day Myanmar to the Brahmaputra Valley. They created a new state by suppressing the older political system by the Bhuyans, landlords. They ruled a kingdom in the present-day Assam for about 600 years, 1228 to 1826 CE. ओके, देखिए अहोम्स जो है एक बहुत पावरफुल ट्राइब है। ओके, उन्होंने माइग्रेट किया म्यांमार से टू द ब्रह्मपुत्र वैली। ओके, अब देख उन्होंने एक न्यू स्टेट क्रिएट किया। ओके, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम भुयास जिसको बोला जाता है, लैंडलॉर्ड्स। ओके, उन्होंने रूल किया उस किंगडम पे, और आज के डे में वो असम है और वो 600 ईयर से यही चलता आ रहा है। ओके, द फर्स्ट अहोम रूलर सुखाफा established his capital at Sharadio near the present day Shibsagar. In the 16th century, several other tribes came under their control. The Ahoms faced many invasions from the southwest. They had also learnt to use cannons, gunpowder. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom and defeated the Ahoms, but the district Mughal control over the reign could not last long. Okay, देखिए जो पहले अहोम रूलर थे सुखपा, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था शराइडियो को। ओके, आज के टाइम पे वो शिवसागर उसका नाम है। 16th सेंचुरी में बहुत सारे ट्राइब्स उसके वहाँ पे उनके कंट्रोल के अंडर आए थे। अहोम्स ने काफ़ी सारे इन्वेजन्स को फेस किया साउथ वेस्ट में। ओके, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की, जैसे कि कैनल्स, गन पाउडर किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ओके, 1662 में मुगल्स ने मिर जमला के अंडर अटैक किया अहोम किंगडम पर और डिफीट किया अहोम्स को। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट मुगल कंट्रोल था वो ज़्यादा टाइम तक रहा नहीं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। The Ahom state depended on forced labor. The forced laborer were called Peks. Each village had to send a specific number of Peks. Almost all adult males served in the army during war and were busy in public works at the time of the peace. Ahoms introduced new methods of rice cultivation. Okay, देखिए जो Ahoms थे उन्होंने क्या किया, फोर्स लेबर किया, मतलब कि ज़बरदस्ती बुलाते थे। ओके, तो उन्होंने फेस किया फोर्स लेबर जिसको पेक्स बोला जाता था। हर विलेज में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेक्स होते थे। ठीक है, और एडल्ट जितने भी मेल्स होते थे, जितने भी एडल्ट मेल्स होते थे उन्हें आर्मी में भेजा जाता था वॉर्स के टाइम पे, और पब्लिक वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, होम्स ने न्यू मेथड्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था राइस कल्टीवेशन का। ओके, होम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस एंड खेल्स. Khel controlled several villages. A peasant was given land by his village community. Initially, the Ahoms worshipped their own tribal gods, but later on, the influence of Brahmins increased. In the reign of Sib Singh, 1714 to 1744, Hinduism became the predominant religion. Okay, देखिए अहम सोसाइटी जो है वो डिवाइड किया गया क्लैंस और खेल्स में। ओके, एक खेल जो है वो काफ़ी सारे विलेजेस को कंट्रोल करता है। जो पीजेंट है वो क्या करते थे, वो किसी भी कम्युनिटी, उनको एक लैंड दी जाती थी किसी भी कम्युनिटी की। ओके, और अहम्स वर्शिप किया करते थे ट्राइबल गॉड्स की। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण्स इंक्रीज कर दिए। ओके, इन्फ्लुएंस किया गया कि ब्राह्मण्स को इंक्रीज किया जाए, उनको इन्फ्लुएंस किया गया। ओके, इस रेन में सिप सिंह जो थे 1714 टू 1744, उन्होंने हिंदुइज्म को इस तरीके से प्रीडोमिनेंट रिलीजन बना दिया गया। ओके, नाउ
Ahom society encouraged the poets and scholars. Important works of Sanskrit were translated into the local language. Ahom historical works known as Buranjis were also written first in the Ahom language and afterwards in Assamese. The Ahom kingdom lost its glory by the 18th century. देखिए अहम सोसाइटी ने क्या क्या चीज़ें इनमें से निकल के आ गए, पोइट्स, स्कॉलर्स, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स संस्कृत में भी ट्रांसलेट किए गए थे इनके, ओके। अहम हिस्टोरिकल वर्क्स जो हैं उनको बुरंजीज बोला जाता है, जो कि अहम लैंग्वेज में लिखा गया, उसके बाद उसे एसएमएस में भी लिखा गया, ओके। अहम के जो किंगडम है वो काफ़ी टाइम तक नहीं चला, 18th सेंचुरी में वो लास्ट कर गया, ओके ओके। नाउ अदर मेजर ट्राइब्स. Apart from the Ahoms and Gonds, there were several other tribes that were powerful in the different areas of the Indian subcontinent. The Khokhar tribe of Punjab were very powerful during the 13th and 14th centuries. Similarly, the Langas and Arghans had been very powerful in several areas in Multan and Sindh. The northeast was under the control of the tribes like the Nagas, Kashis and many others. Okay, देखिए अहोम्स और गोंड्स के अलावा भी काफ़ी सारे ट्राइब्स थे जो कि पावरफुल थे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खोखर ट्राइब जो कि पंजाब से थे, ओके, वो पावरफुल थे 13 to 14 सेंचुरीज़ में। उसी तरीके से लंगास और अरगुन्स थे, वो पावरफुल हुआ करते थे मुल्तान और सिंध में, और नॉर्थ ईस्ट में जो कंट्रोल करते थे ट्राइब्स वो होते थे नागास और काशीज, ओके। नाउ द अफगान्स इन द नॉर्थ वेस्ट were among the most notable tribal groups. They controlled important trade routes via Kandahar and Multan. In many areas of the present day Bihar and Jharkhand, Karo chiefdoms become powerful. The Mundas and the Santhals were two other important tribal groups of eastern India. Okay, देखिए जो अफगान्स थे नॉर्थ वेस्ट के, उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा नोटेबल ट्राइब ग्रुप्स बनने लगे। उन्होंने कंट्रोल पाना शुरू किया कंधार और मुल्तान पे, ओके। काफ़ी केसेस, काफ़ी एरियाज में आज के टाइम पे बिहार, झारखंड है, कैरो चीफडॉम्स ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, ओके। और मुंडास और संथल्स जो हैं ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं ईस्टर्न इंडिया के, ओके। नाउ डू यू नो Birsa Munda, a freedom fighter in the India struggle for independence, belonged to the Munda tribe that is primarily found in Jharkhand. Birsa Munda जिन्होंने एक फ्रीडम फाइटर थे, वो एक ट्राइब रह चुके थे, ओके, मुंडा ट्राइब थे, कहाँ के, झारखंड के, ओके। Kolis were another important tribe. They lived in the Deccan, Karnataka and part of Gujarat. Koragas, Vetras and Marawas were some major tribes in the south. Okay, कोलीस जो थे बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थे, ये डेक्कन्स, कर्नाटका और कुछ पार्ट्स, गुजरात के कुछ पार्ट्स में पाए जाते थे। कोरागाज, वेतर्स और मारावार्स ये भी कुछ साउथ के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थे, ओके। हाउ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज आर यूज्ड टू राइट हिस्ट्री। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है हिस्ट्री लिखने के लिए। द स्टडी ऑफ ट्राइबल लाइफ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. Anthropology is a branch of science that deals with the study of humankind, tracing the evolution in the lifestyle of culture. Okay, देखिए ट्राइबल लाइफ की जो स्टडी है ये एक पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी की, ओके। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है ह्यूमन काइंड की स्टडीज से, ओके, और कल्चर से। All the information about the tribal communities is collected by the scholars, anthropologists. It is their written work which are relied upon the historians as sources for tribal societies. Okay, देखिए जितने भी informations हमें मिलती है ट्राइबल कम्युनिटीज से ये स्कॉलर्स ने कलेक्ट की है, जो कि जिनको बोला जाता था एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ओके। तो इनकी एंथ्रोपोलॉजी में जो कलेक्ट किया गया है वो हमने पढ़ा है, ये रिटन, ये लिखी गई है काफ़ी ज़्यादा रिलाइड हिस्टोरियंस के थ्रू, ओके ओके। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइजेस. टिक द करेक्ट आंसर. हु प्रेस्क्राइब द रूल्स ऑफ द वर्ण सिस्टम. वर्ण सिस्टम के जो रूल्स हैं वो किसने प्रेस्क्राइब किए थे, ब्राह्मण्स ने, ओके ओके। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. द न्यू कास्ट एमर्जिंग विद इन वर्नास वर कॉल्ड जाटीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे. राइट ट्रू और फॉल्स. Here during the Rajput period the Brahmins received and grants, okay, ये true है, okay। बाकी के आप खुद से करेंगे.
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, डिफाइन अ ट्राइब। हमने अभी पढ़ा था ट्राइब क्या होता है, पूरा चैप्टर ही ट्राइब बेस्ड था। ओके, जो ट्राइब्स होते हैं वो हिली एरियाज में या फिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, सोसाइटी होती है, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइब्स होते हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके के ट्राइब्स पाए जाते हैं, अलग अलग नाम से पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सेटल्ड और नॉन मोबाइल सोसाइटीज। ओके, ट्राइबल सोसाइटीज आपको पता है नोमैड जिसमें आते हैं, फिशर्स, हंटर्स, गैदरर्स, ओके, फूड गैदरिंग्स जो करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं आपके ट्राइबल्स, उनकी सोसाइटीज अलग होती हैं, उस टाइप से वो काम अलग करते हैं। ओके, तो जिस तरीके से उनको जाति में बांटा गया था, अलग अलग उसमें बांटने की कोशिश की थी, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट की, कुछ उन्होंने नहीं की। ओके, तो वो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि डिफरेंट सेटल्ड और नॉन मोबाइल सोसाइटीज़ में किस तरीके से वो अलग हैं, वो इसी तरीके से अलग हैं कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। आउट ऑफ द बॉक्स, वेयर द बंजारास इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमी? Why is it Gond's way of worshipping, singing and dancing show a strong connection with nature? Why do you think Rani Durgavati declined Akbar's offer to become a vassal of the Mughal Empire? ये क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे।